Today, in this first episode of Bravery Unplugged with Dr. Vinod Asudani. जैसे कि हमें पता है कि सर हैज़ एक्सपर्टीज इन वेरियस डिफरेंट फील्ड्स. सो इन दिस कॉन्वर्जेशन सर ने हमसे बात की अबाउट सक्सेस, ह्यूमन साइकोलॉजी, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, पोइट्री एंड गजल, a bit of geopolitics and the purpose of life. We hope that all of us will learn a lot from his words. Dr. Vinod Asudani is a renowned academician, motivator, thinker, poet, writer, counselor, and what else, Marai? Psychologist? Yes, and quantum spiritual practitioner. He serves as an associate professor in the Department of Humanities at RCOEM. Dr. Asudani has authored 37 books and presented over 100 research papers. Remarkably, he has achieved all of this despite being visually challenged. He holds PhDs in English and psychology, as well as a D.Lit from the University of South America. His name has been featured in various record books, including Limca, Book of Records in India, 5,000 Leaders from the USA, and the International Dictionary of Intellectuals from Cambridge, USA. He is the recipient of numerous awards, including the Lifetime Achievement Award from the Maharashtra Sahitya Academy, the National Global Award, and the Best Teacher Writer Award from the RTMNU. Hello sir, welcome to the debut episode of Bravery Unplugged. Very good morning to you. Good morning. We are really honored to have you here, and what a start to the series to have a man with so many accomplishments here with us today. So, इतनी सारी achievements है आपकी life में, which among these is the most fulfilling to you? It's very difficult to say because you love all your children. You cannot say this child is really more important and the less important. But I primarily consider myself to be a poet and a thinker. So I have written 37 books. I think this is the most fulfilling point in my life. Okay, nice. Sir, while we were researching about you, हमने देखा कि you have expertise in various different fields. So, sir, to start with, can you share with us your most fond college memory? Most fond? Most fond college memory. कोई ऐसी बात जो आपके दिल के बहुत करीब हो? Oh yes. What happened one day, right? My brother and me, we were studying together. My elder brother, he is Dr. Ghanshyam Asudani. He is also professor of English in Anand Niketan College of Agriculture, Varora. Okay. So we studied together, right? And one of our मुँह बोली बहन, जिसको मुँह बोली बहन बोलते हैं, वो हमारी जूनियर थी, वो भी थी. तो हमको ख्याल आया कि भाई आज लेक्चर करने के बेहतर है कि हम लेक्चर को बंक किया जाए. तो हम मतलब शी वाज अ वेरी मतलब एज अ सिस्टर थी, लेकिन फ्रेंडली भी थी कि मुँह बोली थी. तो उसका मतलब ये नहीं कि मुँह बोला रिश्ता इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो हम उसके साथ अब कहाँ जाएं, बाहर जाएं तो प्रोफेसर साहब पकड़ लेंगे. तो हमने क्या किया, अपने डिपार्टमेंट के टेरेस पर जो सीढ़ी जाती थी वहाँ पर जाके बैठे, और ऑल ऑफ अ सडन हमारे एचओडी डॉक्टर परांज पे, मैं नाम भी बोल देता हूँ उनका, वो आगे एंड उनका एक स्टाइल था बोलने का, बोले यू आसुदनी व्हाट आर यू डूइंग हियर. हमको कुछ समझा नहीं. सर हमने कहा तबीयत ख़राब है. तो बोले तबीयत ख़राब तो तीनों लोग क्या कर रहे हो बैठ के, मेरे ब्रदर, मैं और मेरी सिस्टर. तो ये आई थिंक ऑल आई हैव फॉरगॉट व्हाट माय प्रोफेसर्स टॉट, बट आई रिमेंबर दिस. राइट सर, अभी हम भी मतलब हाँ ठीक है, हम भी थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं बंक करने का लेक्चर्स. बट ये सर एक बात है, जैसे कि आपने भी बताया कॉलेज लाइफ में बंक करना. सो अभी जब सब फैकल्टीज हो जाती है, सब एचओडीज बन जाते हैं, अभी क्यों डांटते हैं सर फिर हमें? Basically, if you ask me personally, right, this is a norm that we want our children to be in the class, and in classroom teaching is really important. But bunking sometimes, if you pay attention very clearly, we want 75% attendance. Yes. Hope you should understand between the lines. The loopholes, 75%. Yeah, 75. I'm not asking 100% that you should be in the class. Right. If you are 100% in the class, you are a nuisance. Sir, as we know, you are known for your humor and wit in the class. सर कोई ऐसा फनी इंसिडेंट क्लास का रामदेव बाबा में जो कि आपको कोई स्टूडेंट आपका याद हो, जिसके बारे में सोच के आपके चेहरे पर एक हंसी आ जाए कि अच्छा ऐसा हुआ था क्लास में, समथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, बिकॉज कैसा है ना कि एक और है कि कभी कभी कैसा होता है, स्टूडेंट को लगता है कि सर को मतलब दिखाई नहीं देता तो प्रॉक्सी मारा जा सकता है. तो एक ही बच्चे ने 4-5 लोगों की प्रॉक्सी मार दी, तो मुझे ध्यान में आ गया कि आवाज़ तो सेम ही आ रही है, आवाज़ तो सेम ही आ रही है. तो मैंने कहा एक काम कर भाई, अब ये 5 लोग आ जाएं क्लास में सामने, अब फंस गया.
अब 5 लोग आए कहाँ से, वो थे ही नहीं, उसने तो प्रॉक्सी मारी थी। तो फाइनली ऐसा हो गया कि उसने कन्फेस कर लिया था कि सर मैंने ही 5 लोगों को प्रॉक्सी मारी थी। तो वो मैंने आई डिड नॉट गेट एंग्री एट दैट टाइम, बट मैसेज वाज क्लियर इनफ दैट कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सर जैसे कि हम क्लासेस के बारे में बातें कर रहे थे, मुझे याद है एक दिन क्लास में आपने एक इंसिडेंट, एक चीज़ के बारे में बात की थी, विच इज़ कि कालिदास इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, but rather Shakespeare should be known as Kalidas of Kalidas England. Kalidas of English. Now this is very important, right? See, the British Raj has come to an end, but unfortunately we are still conditioned by the European thinking. हमें अपनी बातों की तरफ महत्व देना चाहिए। See, that is why we have Indian traditional knowledge, और एक नया सब्जेक्ट अभी भी आया है, फाउंडेशनल लिटरेचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ये बहुत अच्छी बात हुई है NAP में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास लिव्ड इन द 5th century. ही वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोइट एंड प्ले राइट। और शेक्सपियर लिव्ड इन द 16th century. तो हमें शेक्सपियर को जब इंट्रोड्यूस करना है तो हमें ऐसा बोलना चाहिए कि शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लिश। हम बोलते हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत। भाई कालिदास पहले आया था ना, तो कालिदास के नाम से शेक्सपियर जाना जाएगा, हाँ, पिता के नाम से बेटा जाना जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो हमें अपनी चीज़ों में, इंडिया के कल्चर में, इंडिया के जो नॉलेज सोर्सेस हैं उसमें प्राइड लेना चाहिए। क्या उसमें कोई गलत बात नहीं है? बिकॉज वी हैव दिस सिविलाइजेशन हैज़ बीन अ लिविंग सिविलाइजेशन फॉर लास्ट 7,000 years। सर इसी से रिलेटेड एक बात कि ये टॉपिक के बारे में बहुत सी चर्चा होती भी है, द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कल्चर। और हम पिछले कुछ डिकेड्स में, मतलब डेकेड में या फिर पिछले 10-15 सालों में हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें थोड़ी कम हो रही है, मतलब पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर टुवर्ड्स इट। हम लेटेस्ट एग्जांपल ले लें इंडिया भारत वाला, और अदर चीज़ें जिसमें हम इंडियन कल्चर जो है या फिर इंडियन हेरिटेज जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, व्हाई इज़ इट हैपनिंग, कि इज़ इट बिकॉज ऑफ द मीडिया जो कि इस चीज़ को ज़्यादा अब लोगों की नज़र में ला रहा है कि हाँ हमें अब अपनी जो पुरानी सभ्यता है, जो कल्चर है, उसके बारे में हमने ज़्यादा बातें करनी चाहिए, उसके लिए ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए? See, this is known as the post-colonial discourse or the post-colonial narrative. It started as soon as we became independent, right? As soon as we became 1940s, 1950s, more than 60 Asian and African countries became independent, and we started thinking about our indigenous cultures and civilizations. But first we concentrated on the economic development, right? Infrastructure development, right? Then the political discourse, and now gradually we are coming to the culture. So you cannot say that it has started in the last 10 to 15 years, in the last 10 to 15 years. For last 50 years it has been there, right? Right? And because of the media, now people come to know that it is happening. It used to be there. We used to discuss all these things, right? And when you become proud, take pride in your culture, this is not simply related to changing other names, because names have the historical significance. Changing up the names will not resolve the problem. We have to truly understand what kind of knowledge, what kind of wisdom we had, rather than doing these symbolic things of changing, Bharat and India. Again, India has got its own history. Indus is a river, right? And why it was called Indus? So simply you cannot say that this is by changing the name you will be more closer to your culture. I don't agree. Perhaps having India and Bharat, both the names make you multidimensional. सर स्पीकिंग अबाउट इट, हम देखते हैं कि जो स्टारबक्स का हम एग्जांपल ले लें, या तो अभी जो जेनजी जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न कल्चर से। हम अलग एग्जांपल ले सकते हैं डिवोर्स रेट जो अभी बढ़ रहे हैं, शादी की तरफ जो लोगों का एक सोच होती है कि नहीं वी विल फॉलो द वेस्टर्न कल्चर, जो पॉप कल्चर है, और जो इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में लोग अभी उतना नहीं सोचते। दे आर लाइक जेनजी जनरेशन, हम वो सारी चीज़ें करेंगे। तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी है किसकी सर? एग्जैक्टली, नाउ यू हैव कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप बोलते हैं कि इंडियन कल्चर को हमको रिवाइव करना है, तो कल्चर को हम सही तरीके से रिवाइव करें, ना कि नाम बदल कर रिवाइव करें या छोटे मोटे कोर्सेस। मुझे बताइए कि इंडियन कल्चर के जो रियली में हमारे वैल्यूज़ हैं वो हम क्यों नहीं यंग जनरेशन के सामने रखते हैं? फॉर एग्जांपल, एक मैं अगर बहुत ही ओपनली बात करूं तो पूरे देश के अंदर में हुक्का पार्लर पर बैन होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए? हो जाना चाहिए। इमीडिएटली द गवर्नमेंट शुड टेक दिस स्टेप्स। व्हाई द हुक्का पार्लर आर परमिटेड? किसी को लेसन मिलता ही कैसे है? आई कैन नॉट सिंपली अंडरस्टैंड। अगर ये चीज़ें कल्चर परमिटेड करता है तो कौन से इंडियन कल्चर में ऐसा होता था? आप यहाँ वेस्टर्न कल्चर दिखाई देना चाहिए लोगों को, वो दिखाई नहीं देता है। हाँ, मुझे एक बात बताइए कि आपका फॉर एग्जांपल 24/7
रेस्टोरेंट, होटल्स, मॉल्स क्यों खोले रहने चाहिए? What is the factor? See, simply if you are driven by the capitalist concerns, I'm afraid that is not the right way to handle the culture. ओके सर, बट ये तो गवर्नमेंट एंड हाई अथॉरिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया. व्हाट वुड यू से टू द ऑडियंस हु इज व्यूइंग दिस? मोस्टली पीपल वुड बी ऑफ 19 to 20 years. उन्हें एक्सपोजर नहीं है ना अपने कल्चर के प्रति. जब एक्सपोजर ही नहीं है तो वेस्टर्न कल्चर वो फॉलो करेंगे, बिकॉज मीडिया में वो प्रोडोमिनेंटली आपको वेस्टर्न कल्चर ही दिखाई देता है. आप नेटफ्लिक्स उठाइए या और भी कोई भी प्लेटफॉर्म उठाइए सोशल मीडिया का, तो वहाँ प्रोमिनेंटली हमें क्या दिखता है? तो हमें प्रोमिनेंटली अपना प्रेजेंस अगर क्रिएट करेंगे तो बच्चों को देखेगा भी वही और वो फॉलो भी करेंगे. और भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, अपना कल्चर यानी पुरानी बातें, अपना कल्चर यानी नैरो थिंकिंग, ऐसा भी नहीं है. और इसलिए जो है ना वेस्टर्न कल्चर के प्रति लोग अट्रैक्ट होते हैं कि उनको लगता है कि वेस्टर्न कल्चर में ओपननेस है. ऐसा नहीं है, हमारे कल्चर में भी ओपननेस है. आप कभी खजरवा जाइए, इतना ओपननेस हमारे कल्चर में था तो क्यों गायब हो गया? तो किसने बोला कि ओपननेस की कंसेप्ट जो है या ये वेस्टर्न कल्चर से हमने लिया? ये अगेन मिथ है. ओके सर आपने जैसे अभी बात की, तो हिस्ट्री के साथ में अगर हम पहली की मतलब पुरानी हमारी जो कथाएं हैं या फिर जो स्टोरीज़ हैं, वो अगर हम हिस्टोरिक स्टोरीज़ पढ़े तो उसमें भी ये चीज़ें मेंशन थी कि हाँ, बट विद इन द बिटवीन फ्रेम, जो बीच का जो समय था, उसमें चीज़ें बदली. एंड अभी हमारी जो मेंटालिटी है, कॉमन जो ऑडियंस है, कॉमन जो पीपल है उनकी, वो बहुत अलग हो चुकी है. एंड अभी हमें लगता है, जैसे आपने मेंशन किया, कि वेस्टर्न लोग बहुत ज़्यादा फ्री फ्रैंक होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं. तो सर आपको ये क्यों मतलब आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि क्यों ऐसी बदला, जो अगर हम पहले कहते हैं कि हमारा अब इसमें तो बहुत सारे सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स जिम्मेदार रहे. भारत पर बहुत आक्रमण होते रहे, तो इसलिए लोगों के मजबूर हो गए लोग कि अपने चीज़ों को और ख़ास करके अपनी महिलाओं को, बच्चियों को उन चीज़ों से संभाल के रखना. तो इसलिए बाहर आना जाना कम हो गया, उनकी शिक्षा दीक्षा बंद हो गई, उनको रोज़गार के अवसर हमने बंद कर दिए. लेकिन आप एंशंट इंडिया में जाएंगे तो वहाँ गार्गी और मैत्री जैसे एग्जाम्पल आपको मिलते हैं, जो कि ऋषियों के साथ बैठ करके वेदों पर बात करती हैं. तो ये इसलिए हुआ, बीच में एक खौफ का माहौल था, तो इसलिए वो एक टेम्पररी फेस था. लेकिन आज हम इंडिपेंडेंट इंडिया में रह रहे हैं, जहाँ पर गर्ल एजुकेशन को इतना महत्व दिया जा रहा है. तो हम अब खुल करके बात करें. और चेंज जो है, चेंज एक इंटेलेक्चुअल हेल्दीनेस की साइन है. आप इफ़ यू आर इंटेलेक्चुअली हेल्दी, यू आर बाउंड टू चेंज. ओके सर, एज यू आर स्पीकिंग अबाउट द इंडियाज़ ओपिनियन, जो इंडियन लोगों का मतलब वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है, और आपने जो मेंशन किया कि चीज़ें अभी से चेंज नहीं हो रही है, बहुत पहले से, अभी बस मीडिया की वजह से वो हाईलाइट हो रही है. तो सर स्पीकिंग अबाउट इट, जो फॉरेन पॉलिसी है, तो अभी हम देखते हैं कि मीडिया में ये बहुत एक फेमस चीज़ है, ये बहुत इसके बारे में क्लिप्स बहुत वायरल होती है कि हमने रशिया यूक्रेन के ऊपर ये स्टांस लिया, इजराइल पैलेस्टीन के बारे में, जैसे कि कल जो यूएन काउंसिल में वोटिंग है उसमें इंडिया ने एब्सटेन किया, मतलब कुछ वोट नहीं किया किसके फेवर या अगेंस्ट में. और चाइना ताइवान का भी आगे जो इशू हो सकता है, वी आर नॉट श्योर, बट वो एक चीज़ भी है. तो ऑल ओवर दिस थिंग्स, जो इंडिया का स्टांस अभी है और जो पहले था, आपको क्या लगता है, क्या वो बदला है विद टाइम? नो. If you try to understand, India's stand on foreign policy has always been consistent, right from our first Prime Minister till this Prime Minister, cutting across the party lines. I will not speak on the party lines, but we have taken always non-alignment, ideology. We are not supporting either this power block or that power block. Whatever is right, we are supporting. So I don't think that there is any major shift in India's foreign policy. It was like this only. We were the leaders of the non-alignment movement at the time when there was a Cold War, when there was a Russian bloc and the American bloc. Still, India could take a very independent opinion. So that was much more difficult than today's situation. Right. Today, at least with this type of Cold War is not there. So today, being independent, taking independent stand is far easier than taking it in the 1960s or 1970s. So I don't think there is any change or any boldness in Indian foreign policy recently. And sir, what's your stance on the Israel-Palestine conflict? I am Gandhian, right? Basically, I respect Gandhi and Lord Buddha. So I believe in the practice of non-violence. Whatever may be the reasons, violence should stop. I appeal to all the parties that this war or any other war should not be there at any place in the world.
Because we are civilized people, we are educated people, we are scientific people, we are rational people. How can you resolve any issue by dropping bombs on each other? I'm really ashamed of this act of humanity. सर स्पीकिंग अबाउट दैट थिंग, जो चाइना की जो पॉलिसी रही है बहुत टाइम से एक्सपांशन की, कि हमने ये चीज़ देखी है कि जो भी नेबर्स है चाइना के, कहीं ना कहीं एक डर होता है, मतलब कि यार चाइना यहाँ अटैक कर सकता है वो. एंड इंडिया की डिफेंसिव नहीं कहूँगा मैं, बट एक्सपांशन की पॉलिसी तो नहीं रही है ओवर द ईयर्स. तो क्या आपको ये सही लगता है जो हम वसुदेव कुटुंबकम की जो बात है? See, we are richer people. Okay. So you try to understand. If you just think there are two people, one is poor guy, he does not have to eat and he is starving, and another is a rich guy who has a lot of money, right, in his pocket. Now, what do you think? Who will steal? Poor boy will steal. So if you are attacking others' territory, that means you are poor, you are trying to steal. A rich boy doesn't indulge in stealing, right? He knows that he has a lot of resources. So India is rich in the sense, rich in thinking, rich in ideology, rich in human values, rich in cultural values. So throughout the history, I have been the scholar of history, so I can tell you that in the last 7,000 years, right from the Mohenjo-daro civilization till this date, India has never initiated war or violence against any neighbor or any other country. I think this is something that we should be proud of. We indeed are, sir. Well said. We'll be moving on now to literature. एंड सर, हम लोग ने रिसर्च के टाइम आपका यूट्यूब चैनल थोड़ा सा देखा था. यू हैव अपलोडेड अ फ्यू वीडियोस विद योर ब्रदर सर राजेश, एंड उसमें रिसेंटली आप लोग ने गज़ल्स के बारे में बोला था. सो वी वांटेड टू नो अबाउट योर लव फॉर गज़ल्स. पहले मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं. थ्रू लिटरेरी लेंस ये यूट्यूब चैनल है जो मैं अपने छोटे भाई राजेश असुदानी रकीब के साथ इस पर हम लोग बात करते हैं लिटरेचर की. यानी वी डिस्कस लॉट ऑफ लिटरेरी वर्क्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स, ड्रामा, क्रिटिसिज्म, राइट, इन हिंदी एंड इंग्लिश. तो इससे लोगों, वी आर लिटरेचर कम्युनिकेटर्स. बहुत सारे लोगों को लिटरेचर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, यार इतने बड़े वर्क्स नहीं पढ़ पाते. तो हमारा 10-15 मिनट का वीडियो अगर आप देखोगे तो नॉट ओनली यू विल कम टू नो अबाउट दैट लिटरेरी वर्क, बट यू विल आल्सो अंडरस्टैंड दैट वर्क क्रिटिकली. तो इसमें मोर देन 200 वीडियोस आर ऑलरेडी देयर. और हमने गज़ल पर भी कुछ वीडियो इसलिए किए कि मैं ख़ुद गज़ल का शायर हूँ और मेरे 7-8 गज़ल के कलेक्शंस हिंदी, सिंधी, उर्दू में पब्लिश हो चुके हैं. तो गज़ल के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, या यूँ कहूँ कि गज़ल के साथ हमारी मोहब्बत है, हमारा प्यार है. तो ये भी आप कह सकते हैं. और कई सारे मुशायरों में और कवि सम्मेलन में मैंने अपनी गज़लें प्रस्तुत की हैं. सर, जैसे हम आप कह रहे हैं पढ़ रहे थे, एक 15-16 साल पुराना आपका एक ब्लॉग था जिसमें आपने मेंशन किया था यू हैव इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, स्पेशली गज़ल्स. सो सर, फिर से ये बात कि बाकी भी तो गाने जो होते हैं, बाकी जो स्टाइल्स होती हैं, इतना प्यार गज़ल के तरफ क्यों आपका? साहब ऐसा है कि अब मैं आपको थोड़ा सा ले जाता हूँ कि गज़ल जो ओरिजिनली आता है अरबी फ़ारसी का वर्ड है. इसका शाब्दिक लिटरेरी मीनिंग गज़ल का मतलब होता है किसी औरत के बारे में या औरत से बातचीत करना. तो कॉलेज डे में यही अच्छा लगता था, तो इसलिए गज़ल से प्यार हो गया. हमने कहा चलो, उस ज़माना आजकल जैसा खुला नहीं था, हम तो वेट करते रहते थे भाई कोई बात करे, कोई बात नहीं करती तो गज़ल कहते थे. चलो, औरत से बात करने जैसा लगता था. तो आपको मैंने सीक्रेट बता दिया. तो इसलिए गज़ल में साहब जो मोहब्बत छुपी हुई है ना, जो रोमांटिक फीलिंग्स है, और किसी गाने में नहीं है, आपके भजन में नहीं है, नज़म में नहीं है, वो अलग बात है. लेकिन गज़ल, और दूसरी बात ये है कि गज़ल में आप ट्रू पोइट्री देखते हैं. गज़ल जो होता है पूरा पोइटिक फॉर्म है. इसमें जो पोइट्री है, जो कविता है, जो शायरी है ना, वो सही में शायरी है. और एक गज़ल में ऐसा होता है कि एक एक कपलेट यानी शेर, जिसको 2 लाइन का होता है, एक एक शेर में शायर पूरी की पूरी बात कह देता है. पूरा का पूरा नावल, पूरी की पूरी कहानी आपके 2 लाइन में, 2 मिसरों में जब कह जाती है तो बहुत ही शिद्दत के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ वो बात आपके दिल तक पहुंचती है. तो गज़ल जैसा आनंद, खुशी और किसी भी पोइटिक फॉर्म में कम से कम मुझे तो नहीं लगती. बट मैं ऐसा नहीं कहता, हर की पसंद अलग अलग है. जी सर, जैसे कि आपने बताया, क्लास में भी कई बार आपने शेर व शायरों के बारे में बातें की हैं. और हम कभी बात की है, क्योंकि हमारे साहब प्रिंसिपल और मैनेजमेंट भी सुन रहे हैं, शायरी की बात कभी कभी करते हैं. कभी सर, बिल्कुल, कभी आपने बात की. सर, उस चीज़ के ऊपर ये एक बात थी कि हम जो लड़के हैं, स्पेशली मैं लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ. हम जो बैठे हैं
So, She will but agree, अभी sir. वेदांत की बात चालू है। वेदांत की बात कर रहे हैं। जी सर, हम जो लड़के हैं हम शायरियों के बारे में, पोइट्री के बारे में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं इस एज से। हाँ, बिल्कुल। जो 19-20 का जो साल होता बिल्कुल। है। तो सर आपने जैसे अभी मेंशन किया गज़ल के बारे में, हमें पता है कि आपका पोइट्री में भी बहुत इंटरेस्ट है। तो सर क्या आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद है या कोई ऐसी बात जिसके बाद में आपका जो प्यार है पोइट्री के तरफ वो बढ़ गया? जैसे कि अगर हम हमारी बात करें तो हार्ट ब्रेक एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बाद में शब्दों का मतलब समझ में लग जाता है जी। तो आपके बारे तो में? मैं ऐसा बताता हूँ कि मैंने गज़ल तो बहुत बाद में लिखना शुरू किया, लेकिन गज़ल सुनने का, गज़ल पढ़ने का ये शौक़ हमें कॉलेज से ही था। ये आपने सही बात बोली कि 18-20 साल के एज में पता नहीं कहाँ से सारे लड़कों को शेर व शायरी में इंटरेस्ट होता है, गज़ल को कोट और मिसकोट करने लगते हैं, है ना। तो उस समय का जो शौक़ होता है वो सिचुएशनल होता है। या तो गज़ल के किसी मिसरे से आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं, या गज़ल के मिसरे से आप अपने आप को कंसोल करना चाहते हैं दिल टूटने के बाद। यानी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि शायरी में बहुत ताकत है। आप खुश हैं, किसी का दिल जीतना चाहते हैं, तब भी शायरी का सहारा ले सकते हैं। आप दुखी हैं, आप दर्द में हैं, तो भी शायरी का सहारा ले सकते हैं। यानी ज़िंदगी को अगर साइकोथेरापी चाहिए तो वो शायरी से मिल सकती है। इतना इम्पोर्टेंट है शायरी, है ना। तो हमने भी सुनना तो गज़ल प्रारंभ कर ही लिया था उस समय, और धीरे धीरे हम लिटरेचर के स्टूडेंट थे, हमने एमए इंग्लिश किया तो साहित्य से हमारा वास्ता था और मज़ा आता गया। और धीरे धीरे कलम उठा ली, पता नहीं कब कलम उठा ली और गज़ल लिखने लगे और लोगों ने उसको पसंद किया। तो आज तक साहब वो सफ़र जारी है, गज़ल कहने का, गज़ल लिखने का, गज़ल पर बात करने का। तो सर आपने क्या किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी कभी गज़ल लिखी है? ये बड़ा कठिन सवाल है कि जिस समय मैं गज़ल लिखता हूँ वो हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो और दूसरी गज़ल किसी दूसरे के लिए भी हो सकती है। ऐसा कोई इसमें बंधन नहीं है। ये कोई शादी का मामला नहीं है कि आपने एक से कर ली तो दूसरे की तरफ नज़र भी नहीं उठाना है। ये तो सब हाँ, तो इसलिए कैसा ना, गज़ल जब लिखते हैं तो उस समय आपके ख्वाबों ख्यालों में या जहन में कौन है वो तो कहना बड़ा कठिन है। लेकिन कभी कोई रहती भी है, कभी कोई नहीं भी रहती है। क्योंकि एक बात बता दूँ, जो शायरी से थोड़ा बहुत संबंधित लोग हैं उनको लगता है कि मोहब्बत शायरी यानी सिर्फ मोहब्बत की बात, ऐसा नहीं है। शायरी की शुरुआत मोहब्बत से हो सकती है, लेकिन आप मोहब्बत की ही शायरी ज़िंदगी भर करेंगे तो बड़े शायर नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए मोहब्बत के बाद आपको सामाजिक विषयों की शायरी करनी है, सामाजिक विषयों के बाद आपको दार्शनिक शायरी करनी है यानी फिलोसॉफिकल करनी है, और उसके बाद आपको मानवीय संवेदनाओं की शायरी तक पहुंचना है। तो ये पूरी जर्नी है। सी, द राइटिंग ऑफ द पोइट्री कैन वेरी वेल स्टार्ट विद द लॉ, but it should not end with the law. Then you have to proceed to the social concerns. From there you have to proceed to the philosophical concerns, and from there you have to concern to the universal humanistic concerns. This is entire journey. So those who are interested in writing poetry must note it very clearly that you have to progress in journey. You should not get stuck only to the feelings of love. सर जैसे आपने मेंशन किया, मैं जितना शायरी के बारे में जानता हूँ बहुत कम बेसिक्स, मैंने ये चीज़ देखी है कि दो तरीके की शायरियाँ या फिर पोएट्री होती हैं। पहली जो शायर खुद के लिए लिखता है, मतलब वो लिखते हुए वो यही नहीं सोचता कि इसे कोई पढ़ेगा और पढ़ के क्या इंटरप्रेट करेगा। उनके ख्याल में, उनके दिमाग में कुछ ख्याल आया, कोई बात आई एंड उन्हें वो लिखती। एंड दूसरी एक ऐसी चीज़ होती है विच इज़ फॉर द मासेस। इज इट राइट सर? हाँ, दिस इज़ राइट। जो मासेस के लिए बोल रहे हैं उसको बोलते हैं पॉपुलर पोइट्री। पॉपुलर पोइट्री बहुत सिंपल होती है और उसमें सोशल पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, रोमांटिक सब्जेक्ट्स होते हैं, और सिंपल यानी किसी को भी वो समझ में आ जाए, उसके लिए मेहनत ना करनी पड़े, सिंपल वन मीनिंग वाली होती है। तो इसलिए मुशायरों कवि सम्मेलन में लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि लोग तालियां बजाएं, वाह वाह करें। लेकिन जो रियली साहित्यिक कविता होती है ना, लिटरेरी शायरी जिसको कहेंगे, लिटरेरी पोइट्री, वो कठिन होती है। इट इज़ मल्टीपल मीनिंग वाली होती है, काफ़ी उसमें सूक्ष्म बातें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट बातें होती हैं, तो वो समझने के लिए बड़ी कठिन होता है, साहित्यिक होती है। तो वो सही कविता होती है। अब ये तो इसलिए पढ़ी जाती है कि लोग कवि सम्मेलन ने बुलाया है, उनको पैसे कमाने होते हैं, उसको पोइट्री से कोई लेना देना नहीं होता। पोइट्री के नाम पर लोग कवि सम्मेलनों में चुटकुले बताते हैं तो भी चल जाते हैं, लेकिन वो शायरी होती नहीं है। बिल्कुल सर। सर जैसे अभी आपने बात की अबाउट पोइट्री, तो हमने दो तरीके की पोइट्री की बात की, वन फॉर द मासेस एंड वन जो कि फॉर द, यस सर, जो लिटरेरी पोइट्री आपने बताया। तो सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि क्या ये जो पोइट्री का स्टाइल है एंड जो फिलोसॉफी है, जो फिलोसॉफी होती है, इज पोइट्री एंड फिलोसॉफी रिलेटेड? पोइट्री एंड फिलोसॉफी रिलेटेड की बात नहीं है। पोइट्री इज ग्रेटर देन फिलोसॉफी, पोइट्री इज ग्रेटर देन हिस्ट्री।
poetry combines in itself history and philosophy both. That is what Aristotle says 2500 years ago. और ये ट्रू बात है, क्योंकि पोइट के पास इमेजिनेटिव कॉन्क्रीट एग्जाम्पल भी दे सकता है. हिस्ट्री में तो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है, इमेजिनेशन काम नहीं करेगी. शिवाजी जीत गए तो जीत गए, है ना. लेकिन पोइट्री में आप किसी को वो जीता हुआ किसी को भी हरा हुआ दिखा सकते हैं. तो वहाँ पर फ्रीडम है पोइट्री में. तो इसलिए, और फिलॉसफी में कैसा होता है, सिर्फ थ्योरी है, एग्जाम्पल्स नहीं है. तो फिलॉसफी समझने के लिए बहुत कठिन है. पोइट्री क्या है, फ्लेक्सिबल है. वहाँ हिस्टोरिकल एलिमेंट भी है, फिलॉसफी का एलिमेंट भी है, सोशल एलिमेंट भी है ना, आर्टिस्टिक एलिमेंट भी है. तो इसलिए पोइट्री जो ऐसी चीज़ है, मैं तो एक जगह कहता हूँ कि ज़िंदगी को समझने के लिए और ज़िंदगी का मज़ा लेने के लिए पोइट्री से अधिक शक्तिशाली कोई चीज़ है ही नहीं. क्या बात है, बिल्कुल. सर, फिलोसॉफी के बारे में अगर हम बात करें थोड़ी, सर, व्हाट डू यू सी इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, कि आपके अकॉर्डिंग मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रेडिशनली हम ऐसा सोचते थे कि देयर इज़ अ मीनिंग, और हर एक इंसान जाए, ही हैज़ टू गो एंड डिस्कवर दैट मीनिंग, ही हैज़ टू गो एंड फाइंड आउट दैट मीनिंग. आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग सत्य की खोज में निकलते हैं, ट्रूथ के खोज में निकलते हैं, पर्पस के खोज में निकलते हैं, ज़िंदगी का अर्थ खोजने निकलते हैं. अर्थ कोई ज़िंदगी से बाहर नहीं पड़ा है जिसको जाकर आपको खोजना है. फिलॉसफी का मतलब होता है कि यू हैव टू क्रिएट मीनिंग सिचुएशनली. आप अपनी अपनी सिचुएशन में अगर मीनिंग क्रिएट कर पाते हैं तो ज़िंदगी ब्यूटीफुल हो जाएगी. अब अगर आप मुझे पूछोगे कि इंट्रिंसिकली, यानी ओरिजिनली कोई ज़िंदगी का मतलब है क्या, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, तो सही में कोई मतलब नहीं है. नोबडी नोस हम क्यों आए हैं और यहाँ से हम कहाँ जाएंगे ये नहीं पता. तो अल्टीमेटली कोई मीनिंग नहीं है. लेकिन अगर आप ये एटीट्यूड लोगे कि अल्टीमेटली ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, तो ज़िंदगी सारी मिजरेबल हो जाएगी. पर हम क्यों पढ़ाई करें, क्यों नौकरी करें, क्यों शादी करें, क्यों घूमें, क्यों फिरें, क्यों मनोरंजन करें, एवरीथिंग विल बी रिड्यूस्ड टू मीनिंगलेसनेस, राइट. इसलिए फिलॉसफी का मतलब ही इतना होता है कि एक आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपके माइंड में बन जाए, और सभी के लिए सेम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं होता है. Everybody has to acquire his or her own theoretical framework, and within that framework he or she has to create meaning of life every day भी कर सकते हो. आप अपने जीवन के लिए भी मीनिंग क्रिएट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शायर हूँ, मैं एक फिलोसोफर थिंकर हूँ. मेरे जीवन का मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अधिक से अधिक सुंदर गज़लें लिखी तो मुझे अपना जीवन मीनिंगफुल लगता है. अब ये मेरी मीनिंग है, आई हैव क्रिएटेड, और इसके लिए मुझे रोज़ उत्साह रहता है. रोज़ मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, लिखने के बाद किताबें छपाता हूँ, कवि सम्मेलन में जाता हूँ, बोलता हूँ, है ना. तो इससे मुझे मीनिंग क्रिएट हो गई. हो सकता है आपके लिए मीनिंग कुछ और हो, आपको लगता हो कि डिग्री प्राप्त करके एक अच्छा टेक्नोक्रेट बन जाऊँ, उसमें आपको मीनिंग हो जाए. हो सकता है आपके पास और कोई शौक हो. तो मीनिंग जो है ना, हर एक व्यक्ति के लिए सब्जेक्टिव कंसेप्ट होती है. सबके लिए सेम मीनिंग हो ही नहीं सकती. जहाँ भी हम सेम मीनिंग देने का प्रयास करते हैं ना, वो गलत काम करते हैं, उससे मीनिंग मिलती भी नहीं. और इसलिए बहुत सारे नौजवान परेशान इसलिए रहते हैं कि उनको रेडीमेड मीनिंग किसी ने दिया है, किसी फिलॉसफी ने दिया है, किसी स्पिरिचुअल गुरु ने दिया है, किसी ने रिलीजन ने दिया है, हाँ, किसी ने प्रोफेशन ने दिया है. तो ऐसा रेडीमेड मीनिंग हमें काम का नहीं है. एवरीबडी हैज़ टू वर्क आउट हिज और हर ओन सिचुएशनल मीनिंग. चाहे वो छोटी सी छोटी बात ही क्यों ना हो, उसमें अगर आपको मज़ा आ जाए, आप समझ लेना कि मीनिंग जिंदगी का मिल गया. और ऐसा भी नहीं है कि अब इस एज में आपको 22-23 साल में एक पर्टिकुलर चीज़ से मज़ा आता है तो वो मीनिंग है. 50 साल में आते हैं तो हो सकता है किसी दूसरी चीज़ से मीनिंग मिल जाए. तो मीनिंग कांस्टेंट भी नहीं है कि आज जिसमें मीनिंग मिल रहा है आपको वही मीनिंग रहेगी. नहीं, हो सकता है वो बदल भी जाए, हो सकता है वो ना भी बदले, है ना. तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है. मीनिंग इज टू बी क्रिएटेड, इट इज़ नॉट टू बी डिस्कवर्ड. यस सर. सर, आपने जैसा ये स्पिरिचुअल बोला, वी वांटेड टू नो, आर यू रिलीजियस? आई एम नॉट रिलीजियस. I am humanist, rationalist, and quantum spiritual practitioner. So can I call you an atheist? No, I am not hardcore atheist. Atheist rejects everything, and atheist believes that every science can explain everything. Take it from me on the stamp paper that science cannot explain anything, everything. It can explain to very great extent, right? तो एथियस्ट जो होता है वो कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है पूरे यूनिवर्स के ऑर्डर को ही, और बोलता है कि हम सब एक्सप्लेन कर सकते हैं. ऐसा नहीं है. बहुत सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इसका मतलब ये नहीं कि गॉड ने बनाई है, वो भी उतना ट्रू नहीं है, राइट. तो हम एक खोज के यात्रा पर हैं.
धीरे धीरे हम उस यात्रा पर हैं जहाँ पर हम खोज रहे हैं, वी आर डिस्कवरिंग एवरीथिंग, और धीरे धीरे हम अपने जीवन में हो सकता है सब कुछ ना भी खोज लें, राइट। तो क्वांटम स्पिरिचुअलिस्ट एक नया टर्म मैं बोलता हूँ, इस पर काफ़ी वर्कशॉप्स भी मैंने किए हैं। क्वांटम थ्योरीज जो आई हैं साइंस की आपकी, क्वांटम थ्योरी बोलते हैं मैटर भी है, एंटी मैटर भी है। क्वांटम बोलती है कि सारा टाइम फ्रेम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कनेक्टेड है। क्वांटम थ्योरी बोलती है कि सारा स्पेस आपस में कनेक्टेड है एंड एक्सपांडिंग है, राइट। तो स्पिरिचुअलिटी भी वैसी ही है। स्पिरिचुअलिटी कोई जीवन से अलग नहीं है। हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, इट्स अ परफेक्टली स्पिरिचुअल स्टेट। आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, परफेक्टली स्पिरिचुअल स्टेट है। इससे ज़्यादा स्पिरिचुअल कोई हो भी नहीं सकता दुनिया में जितना आप और हम इस समय स्पिरिचुअल फील कर रहे हैं। तो आप जो भी काम पूरे तन्मयता के साथ करते हैं, पूरे दिल दिमाग के साथ करते हैं, पूरा लीन होकर के वो काम करते हैं, चाहे कोई भी हो काम, वो स्पिरिचुअल एक्ट हो जाता है। कोई भी काम स्पिरिचुअल एक्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड आपको उस लेवल तक आना। आप खाना खा रहे हैं, खाना खाना भी स्पिरिचुअल हो सकता है अगर आप मजा लेकर खाएं। अगर आप सिर्फ ये कहें जल्दी खाना खाना है, मुझे ऑफिस भागना है, तो अनस्पिरिचुअल हो गया है। कोई चोर भी चोरी तन्मयता से करे, अगर मन लगा कर चोरी करे और उसको मजा आ जाए, तो वो भी स्पिरिचुअल काम है। बिकॉज ethics is not the ultimate yardstick to understand anything whether it is spiritual or not. हमने ethics morality को spirituality के साथ ऐसा मिक्सअप किया है तो हम morality को spirituality समझते हैं। It has nothing to do with ethics and morality, right? कोई चीज़ moral हो भी सकती है फिर भी spiritual नहीं होगी, कोई moral नहीं होगी तो भी spiritual होगी। खैर इस पर मैं इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं बोलूँगा, कहीं और अपने किसी लेक्चर में या किसी वर्कशॉप में समझाऊंगा कि स्पिरिचुअलिटी एंड मॉरलिटी मे और मे नॉट गो टुगेदर। सर एज यू मेंशन अबाउट मॉरलिटी एंड एथिक्स, सर एक बात जो मुझे बहुत पहले से खटकती थी या फिर मुझे नहीं समझती थी ये बात, कि सर हम ये जो डेफिनेशन देते हैं कि ये चीज़ मॉरली करेक्ट है और वो चीज़ मॉरली गलत है या एथिकली सही है गलत है, सर मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो आफ्टर लाइफ वाली जो कंसेप्ट हमने बनाया है, आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, कि अगर तुम अच्छे काम करोगे, मॉरली सही, एथिकली सही काम करोगे, तो आफ्टर लाइफ में वो चीज़ सही होगी तुम्हारे साथ, जो पूर्ण जन्म वाली जो एक बात होती है। अब खैर ये बातें कुछ लोगों को शायद हजम नहीं होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने काल्पनिक है, सारी इमेजिनेशन है। और रिलीजन जब बने तब लोग इतने पढ़े लिखे और सोच वाले नहीं थे, तो एक लोगों डरा के धमका करके मॉरल बनाने वाला मामला था कि भाई देखो तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। इसे डर के मारे लोग काम अच्छे करने लगे। लेकिन कैसा होता है ना, आप हमेशा डर के मामले अच्छे काम नहीं कर सकते। अगर आपकी टेंडेंसी अच्छे काम करनी है तो फिर डराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो हर एक को सोचना है कि मैं अच्छा काम क्यों कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे स्वर्ग मिलेगा। अच्छा काम मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि यही किया जा सकता है, अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब आपके पास बुरा काम या अल्टरनेटिव आप मानिए नहीं तो आपको दिखेगा भी नहीं। तो हमें अच्छा क्या है, हमें स्वयं, फिर से क्या है ना, सब्जेक्टिव है, फिर भी हमें स्वयं सोचना है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखिए, वह काम बुरा है जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। सिंपल, आपके लिए अच्छा है मतलब ऐसा नहीं कि सबके लिए अच्छा है। आपके लिए अगर अच्छा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो डेफिनेटली अच्छा है। किसी को भी फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली अगर आप हर्ट कर रहे हो तो काम कभी भी अच्छा नहीं है। एक ही कंडीशन है, वो उसका ये नहीं है कि इट इज सैंक्शन्ड बाय द रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी और नॉट, दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यू शुड नॉट हर्ट एनीबडी फाइनेंशियली, इमोशनली एंड फिजिकली। अंडरस्टूड। सर जैसे आपने ये बात बोली कि जो रिलीजन में जो ये सारी बातें हैं, पूर्णजन्म वाली, आफ्टर लाइफ वाली चीज़, सो कहीं ना कहीं वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कि वह लोग एक लिमिट में रहें या फिर एक चीज़ के अंडर ही काम करें, बहुत एकदम ऐसे बिन किसी मॉरल के या फिर बिन किसी एथिक्स के ना हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि सारे लोग इतने एडवांस्ड नहीं है कि स्वयं सोच करके अच्छा काम कर सकते। बहुत सारे लोगों को डराना पड़ता है तब अच्छे काम करते हैं। जैसे पुलिस क्यों चाहिए? फिर पुलिस इसलिए चाहिए कि लोग डरे रहें पुलिस से। वैसा पुलिस की ज़रूरत क्या है हमें? हम तो यूं ही पढ़े लिखे लोग हैं, 21वीं सेंचुरी में रहते हैं, बड़े शानो शौकत से रहते हैं, तो हम तो स्वयं ही अच्छे काम करें। लेकिन हर चौराहे पर आपको पुलिस वाला दिखता है। पुलिस वाला है इसलिए आप हेलमेट पहनते हैं, पुलिस वाला है इसलिए आप लाइसेंस बराबर रखते हैं गाड़ी का। तो आज भी हमारी टेंडेंसी वही है ना, जब तक हमें कोई डराया गया नहीं, पनिशमेंट की धमकी नहीं मिलेगी, तब तक हम काम अच्छा नहीं करते हैं। तो रिलीजन भी वही कर रहा है। और सर ये जो, जैसे कि हम पुलिस का एग्जांपल लें, तो ये लॉ एंड ऑर्डर भी किसी ने बनाया है, बैठ कर डिस्कस करके बनाया गया है।
सिमिलरली जो ये आफ्टर लाइफ वाली जो चीज़ बातें हो सकती हैं, अगर हम ये भी सोचें कि ये भी हो सकता है किसी ने बैठकर बिल्कुल सोचकर बनाया हो, बिल्कुल। तो सर क्या हम ये हमने इतने इजीली क्यों मान लिया कि ये सब सही है करके? हम क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि बिकॉज दुनिया में हमेशा से ऐसा होता है कि सोचना बड़ा कठिन काम है, पढ़ना आसान है, फॉलो करना भी आसान है। टू थिंक इज अ वेरी डिफिकल्ट। जॉन कीट्स ने कहा था अपनी एक पोएम में, ओड टू नाइटिंगेल में, टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सॉरो। जैसे ही आप सोचोगे तो बड़े दुख में पहुंच जाओगे। हमको सिस्टम सोचना नहीं सिखाता। आप स्कूल्स कॉलेजेस में जाइए, पढ़ना सिखाएगा, रीडिंग सिखाएगा, राइटिंग सिखाएगा, कम्युनिकेशन सिखाएगा, राइट, प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाएगा। नोबडी विल आस्क यू टू थिंक ऑन दिस प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं सिखाएगा। जिसको आप क्रिटिकल थिंकिंग कहते हो ना इंजीनियरिंग और साइंस की भाषा में, बेसिकली वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सोशल कल्चरल प्रॉब्लम्स। आप तो सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको आप क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हो। आई एम अफ्रेड वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, और है भी तो बहुत लिमिटेड सेंस में है वो। आप सोशल इश्यूज पर, कल्चरल रियल इश्यूज पर जब आप थिंकिंग करोगे, चाहे उसका सॉल्यूशन आपको ना भी मिले, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना थिंकिंग का पर्पस है ही नहीं। एनालिसिस करना, अपने आप को एनरिच करना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव डेवलप करना किसी भी इशू पर, दैट इज द पर्पस ऑफ थिंकिंग। तो वो हम नहीं सिखा रहे। हम कभी पूरे यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर में कहीं भी लोगों को रियल प्रॉब्लम्स पर आप ओपनली सोचो ऐसा नहीं बोला जाता है। So don't you think there should be a change? Yes, there should be a change. Basically, the universities must be the temples of learning thinking, not mugging up the things. So how would you suggest कि ये चेंज लाया कैसे जाए? क्योंकि हमेशा हम लोग भी जब क्लासेस में जाते हैं तो बहुत सारी फैकल्टीज़ है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट पहले ही बोला है कि सेम चीज़ें पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग हाउ टू मेमोराइज थिंग्स, बट नो वन रियली सजेस्ट कि चेंज करना कैसे करना है। वो पता है बट देखिए, मैं मेरे रेडिकल व्यूज़ हैं। अब मैं बोल ही देता हूँ, अभी किसी को लेना हो तो ठीक है, नहीं तो भूल जाए कि ये नहीं बोला है मैंने, बस इतना। देखिए ना, कैरिकुलम को हम रिजिड ना बनाए, फ्लेक्सिबल बना दें, पहली बात तो। जैसे कैसे फ्लेक्सिबल, यानी कैसे? फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं इंग्लिश का हूँ तो इंग्लिश का ही एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ किसी क्लास में, लिटरेचर का एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ तो इसलिए इंजीनियरिंग का फिलहाल एग्जांपल नहीं देता हूँ, क्योंकि और 5-6 साल मुझे जॉब करने हैं। तो लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ। अब होता क्या है कि 10 उसमें लेसन्स होते हैं, 10 पोइम्स होती हैं और हमें वही पढ़ानी होती हैं। तो मैं क्या, ऐसा मत करिए। आप एक काम करिए, सिलेबस इतना वास्ट बनाइए, 100 लेसन्स रखिए, 100 पोइम्स रखिए, अलग अलग प्रकार के रखिए, और प्रत्येक टीचर पर छोड़ दीजिए कि आपको जो भी 10 लेसन्स या 10 स्टोरीज, 10 पोइम्स पढ़ानी है आप पढ़ाइए। आई हैव लॉट ऑफ चॉइस, बराबर है। मैं अपने टेम्परामेंट की पोइम्स ढूंढूंगा उसमें, बराबर है, और वो पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट ईयर कुछ और पढ़ाऊंगा, तो आपको सिलेबस बदलना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हर टीचर को अपना चॉइस भी रहेगा। तो हम पहले तो फ्लेक्सिबल सिलेबस क्यों नहीं बनाते, ये मेरा इतना रिजिड क्यों बनाते। दूसरी बात, इवोल्यूशन जो पैटर्न है, हाँ, एजुकेशन का, वो इतना 3 घंटे एक जगह डेस्क पर बैठ करके, हाँ, जल्दी जल्दी बस पन्ने भरने वाला आंदोलन क्यों करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम टीचिंग कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ किसी को, अब उसमें मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, उसमें हाउ टू राइट अ लेटर पढ़ा रहा हूँ, हाँ, बिजनेस रिपोर्ट पढ़ा हूँ, आपको भी पढ़ाया होगा फर्स्ट ईयर में। मुझे बताइए, कोई लड़का आ जाए मेरे पास और बोले सर ये तो मुझे आता है, मैंने एक नावल लिख दी है और नावल मेरी पब्लिश भी हो गई है, फिर से मैं उसको बोलूँगा तो एग्जामिनेशन दे और हाउ टू राइट अ लेटर ये लिख, ग्रामर लिख। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे पास ये सुविधा क्यों नहीं है कि मैं उस लड़के को एग्जाम कर दूँ। मैंने कहा ओके, तुम्हारा नावल सबमिट हो गया, यू सबमिट कॉपी ऑफ योर नावल, आई विल डिक्लेयर यू पास। व्हाई नॉट? मुझे बता, कोई लड़का मेरे पास आता है, उसने 10 पोइम्स लिखी हैं और मैं उसको सर्टिफाई कर सकता हूँ कि पोइम्स बिल्कुल सही है, फिर भी मैं उसको बोलूँ कि अच्छा सिनोनिम एंटोनिम भी लिख के बैठ, है ना, फिर उसको वही समझाऊँ मैं जो उसको ऑलरेडी आता है, आगे चल चुका है वो। तो हमारा सिलेबस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता, क्लासरूम में भी नहीं देता और एग्जामिनेशन के लिए भी नहीं देता। और ये फ्लेक्सिबिलिटी जिस दिन मिल जाएगी तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से कौन सा स्टूडेंट कितना आगे है उसको आगे लेके जा सकते हैं आप, राइट। आप क्या कर रहे हैं, जो स्लो लर्नर है और जो फास्ट लर्नर है उसी को एक ही यार्ड स्टिक से एक ही सिलेबस पढ़ा रहे हैं, अच्छा एग्जामिनेशन भी एक ही ले रहे हैं आप। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम जब तक नहीं टूटेगा तब तक आप थिंकिंग के लिए स्कोप रहेगा ही नहीं। और हम सही में थिंकिंग, रियल थिंकिंग, मैं तो ऐसा कहता हूँ कि हर हफ्ते एक क्लास सिर्फ थिंकिंग के लिए दिया जाए और लड़कों को बोला जाए कि चलो सोचो, अच्छा सोचो, बुरा सोचो, उसमें कोई पाबंदी मत लगाओ। आप उसको ये मत सोचो कि देखो एक बकरी होती है, उसके खूंटे में एक रस्सी बांधी जाती है, वो रस्सी 100 फुट भी लंबी हो सकती है, फिर भी 100 फुट वो बंधन हो गया कि नहीं, उसके आगे नहीं जाएगी बकरी।
आप बोलोगे बकरी को हमने स्वतंत्रता दे दी, नाचती है, कूदती है, इधर जाए उधर जाए, गोल गोल घूमे, लेकिन आपने रस्सी बांधी है जिसकी एक सीमा है 100 फीट की। आप ये सीमा काट दो, रस्सी बकरी के गले से निकाल दो और फिर देखो बकरी कैसे उछलती कूदती है। पर सर इसमें ये भी तो एक मतलब जैसे आपने कहा उसके एड ऑन में कि हम ये क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम डरे हुए हैं, सीधी बात, हम डरते हैं। हम डरते हैं कि भाई ये लड़के अगर सोचेंगे और तो आगे की चले जाए तो फिर हमारा क्या होगा। हमने तो वही चीज़ें पढ़ी हैं, 2-4 किताबें पढ़ी हैं। हाँ, तो ऐसा है, एक शेर है बहुत अच्छे शायर का कि नन्हे मुन्ने हाथों को चांद सितारे छूने दो, नन्हे मुन्ने हाथों को चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़ के वो भी हम जैसे हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है सर। ये जो बात आपने कही, कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो लोग पावर में हैं शायद वही नहीं चाहते कि बाकी जो मासेस है, जो बच्चे हैं या फिर जो ये यूथ है वो कुछ और डायरेक्शन में सोचे। शायद तक वी आर प्रिपेयरिंग पीपल, नॉट ओनली स्पेसिफिक इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया में यही मामला है। पूरी दुनिया में, यूएस को भी मैं जानता हूँ, चाइना जापान में भी जानता हूँ, मोर और लेस ये। बिकॉज आप ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वाई वी गेट एजुकेशन। हम एजुकेशन इसलिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इनरोल करते हैं सो दैट वी कैन गेट अ गुड जॉब। वी डू नॉट गेट एजुकेशन फॉर द एनरिचमेंट ऑफ लाइफ, फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ इन अ बेटर मैनर। हमारा पर्पस ही ऐसा है ना कि सी इंटायर एजुकेशन इज ड्रिवन बाय द कैपिटलिस्ट कंसिडरेशंस। तो इंडस्ट्री बोलता है कि ऐसे मुझे स्टूडेंट तैयार करके दो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से जो मेरे इंडस्ट्री में वर्कर बन सके। वो ये नहीं बोलता कि आप गांधी पैदा करो, आप टैगोर पैदा करो, आप एरिस्टोटल पैदा करो, आप सोक्रेटिस पैदा करो, आप कणाद पैदा करो, आप आर्यभट्ट पैदा करो, हाँ, आप पाणिनि पैदा करो, आप शेक्सपियर पैदा करो, आप कालिदास पैदा करो। ये कैपिटलिस्ट सिस्टम आपको कभी बोलेगा ही नहीं। कैपिटलिस्ट सिस्टम ये बोलेगा कि एक वर्कर पैदा करो, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर पैदा करो, एक साइंटिस्ट पैदा करो, एक मैथमेटिशियन पैदा करो, और वैसा पैदा करो जो मेरी इंडस्ट्री की नीड समझता हो। तो फिर आपके पास बड़े थिंकर्स पैदा कैसे होंगे? तो हम पहले तो हमको समझना चाहिए कि एजुकेशन का पूरा पर्पस जाकर के इंडस्ट्री में जॉब लेना नहीं है। एक सेंसिटिव, सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल, सोशली एम्पैथेटिक, कल्चरली अवेयर इंसान पैदा करना एजुकेशन का पर्पस है। तो 50% तो आप वो पढ़ाइए जो इंडस्ट्री में काम आ जाए आपको रोजी रोटी के लिए, 50% वो पढ़ाइए जो ये सारे मैंने मुद्दे उठाए हैं ये सिखाएं। तो हम कहाँ इनकारपोरेट कर रहे हैं? हम तो इनकारपोरेट नहीं कर पा रहे हैं अभी। तो हमारा सारा एजुकेशन जो है वो इंडस्ट्री ड्रिवन है। और बाहर जाओगे भारत के तो और भी मामला गड़बड़ है, इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड है। आपकी यूनिवर्सिटी में जो स्पॉन्सरशिप्स आ रहे हैं वो इंडस्ट्री से आ रहे हैं। अब इंडस्ट्री वाला जब आपको पैसा देगा, आपको ये इस बात के लिए पैसा नहीं देगा कि आप टैगोर बन जाओ और गीतांजलि लिखो। वो तो बोलेगा कि भाई देखो मेरे काम का बच्चा मुझे दो, जिसको सारी स्किल्स आती हो, जो मेरे इंडस्ट्री में आकर मुझे पैसा कमा के दे। तो हम एजुकेशन को सिर्फ अगर रोजी रोटी कमाने का साधन रखेंगे तो कभी भी हम बड़े थिंकर्स, फिलोसोफर्स और बड़े लोग क्रिएट नहीं कर पाएंगे। राइट सर। और ये मैं बीच में एक स्टैट्स भी पढ़ रहा था सर, उसमें भी ये था कि जो बाकी डिग्रीज है अदर देन इंजीनियरिंग, जो कि लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस करती है, उसका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब कि वहाँ से बच्चे जो निकल के कंपनीज़ में एम्प्लॉय होते हैं और जो इंजीनियरिंग में होते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। यस। तो सर क्या आप ये नहीं सोचते कि हम जो लिटरेचर जो चीज़ है उसको इंडिया में एट प्रेजेंट आगे बहुत नीड है, बट एट प्रेजेंट उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है गैस? या बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मुझे बताइए कि एक BE पास वाले लड़के को 40-50 हज़ार का जॉब मिल जाता है और यहाँ MA लिटरेचर वाले को 15 हज़ार का भी नहीं मिलता है। क्योंकि फिर से वही बात आ जाती है कि हमारे सारा जीवन कैपिटलिस्ट डोमिनेटेड है। हमको लगता है कि जिस चीज़ का सिर्फ वैल्यू पैसों के मामले में मिलता है वो यूज़फुल है, तो हमें नए जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट बोलती है कि नए जॉब्स नहीं है, इंडस्ट्री बोलती है नहीं, नए जॉब्स ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई पोइट है, मैं पोइट हूँ इसलिए नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग पोइट्स हैं, वो बहुत अच्छी पोइट्री लिख पाते हैं। तो इन लोगों को गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर भी हायर करे कि भाई आप अच्छी पोइम्स लिखें, लोगों को जाके सुनाएं, तो लोगों की इमोशनल हेल्थ, कल्चरल हेल्थ अच्छी होगी। दे शुड बी पेड। वाई उनको पेमेंट नहीं मिलता है? क्योंकि हमको सीधा सीधा प्रोडक्शन नहीं दिखता वहाँ पर। लेकिन अच्छी पोइट्री, अच्छा ड्रामा, कोई ड्रामा का कलाकार है, उसको जॉब्स क्यों नहीं मिल सकते? हम ड्रामा को महत्व क्यों नहीं देते लाइफ में? कोई ड्रामेटिस्ट है, उसको पैसे दे देना चाहिए,
उसको गवर्नमेंट 1 लाख रुपया सैलरी दे, वो ड्रामा करता रहे पूरे दिन। कोई म्यूजिशियन है, अच्छी अच्छी म्यूजिक बनाए, उसको गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट करे। भाई हर शहर में 100 म्यूजिशियंस हमको अपॉइंट कर दें, वो म्यूजिक बनाए। लोगों को आजकल तो सोशल मीडिया फ्री है, अपलोड करें, लोग सुनेंगे अच्छा अच्छा म्यूजिक, दे शुड बी पेड। अच्छा मान लीजिए वो म्यूजिक बनाता है, लेकिन रोजी रोटी के लिए तो उसको इंजीनियर बनना पड़ता है, तो म्यूजिक कब बनाएगा? तो अगर अच्छा म्यूजिशियन है तो गवर्नमेंट शुड पे इट। व्हाई गवर्नमेंट शुड पे ओनली फॉर द टेक्निकल एंड द मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स? दिस इज माय ओपन क्वेश्चन। व्हाई गवर्नमेंट शुड नॉट पे फॉर द लिटरेरी वर्क, फिलोसॉफिकल वर्क, कल्चरल वर्क, ड्रामेटिक वर्क? This is a really $1 million question, and I hope that some good leader listens to this podcast and you will understand. Yes, sir, definitely. आपने जो point बोला, we have heard about many stories and instances. अब और बता दो, हम तो पुराने भारत को रिवाइव करना चाहते हैं, एंशिएंट कल्चर को लाना चाहते हैं। आपको पता है कि पुराने हमारे राजा महाराजाओं के दरबार में कवि भी होते थे, म्यूजिशियंस भी होते थे, चित्रकार भी होते थे, जोकर्स भी होते थे, और राजा उनको पेमेंट पर रखता था अपने दरबार में। तो भाई हम पुराना जब कल्चर रिवाइव कर ही रहे हैं सभी तरीके से, इस भारत की पुरानी ग्लोरी को रिवाइव कर रहे हैं, तो बीच में कुछ एस्पेक्ट्स को क्यों छोड़ देते हैं? Definitely, so artists are very underpaid in today's society. Well, I think we are running out of time now, so it's time to wrap up the discussion. Before we end this, there was a topic जिस पे हम सब रेवरी members ने बहुत discussion किया था. We were debating, but somehow we were not able to reach a conclusion. Sir, do you remember in class आपने पान शॉप के बारे में एक स्टोरी सुनाई थी? Oh yes. Can you recite it again for the viewers? बिल्कुल। मैंने ये बताया कि मैं प्रोफेसर हूँ, और एक बार एक पान ठेले पर गया, और ऑल ऑफ अ सडन उस पान ठेले के मालिक ने कहा कि आप पहचाने मुझे? मैं तो नहीं पहचाना। बोले आपको? बोले वही मैं मुकेश। बोले कौन सा मुकेश? बोले आपके साथ हाई स्कूल में पढ़ता था। अरे हाँ यार। मैंने कहा मुकेश क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं कर रहा हूँ, बोले पान का ठेला चला रहा हूँ। मेरे मन में सोचा यार अच्छा है, मेरी तो 1-2 लाख रुपया पगार है, इसका कितना कमाता होगा? मैंने आउट ऑफ इंटरेस्ट उसको पूछा, भाई कितना कमा लेते हो यहाँ पर? बोले कितना कमा लेता हूँ मतलब क्या है, ज़्यादा नहीं कमाता हूँ, आई मीन ऐसा समझ लीजिए कि बस 3-3.5 हज़ार एक दिन का। मुझे कमा लो यार। मैंने 1 महीने का कितना? बोले 1 लाख रुपया। बोले बढ़िया है। मैंने सोचा यार ये भी 1 लाख रुपया कमाता है, हाई स्कूल भी पास नहीं है, मैंने तो 2 PhD किया। फिर मैंने कहा सिर्फ ये मतलब पूरा दिन सुबह से 7 बजे से रात को 11 बजे तक यहीं बैठे रहते हो? नहीं, बोले ये लड़का रखा हुआ है, 15,000 रुपये इसको देता हूँ। मैंने कहा बाकी क्या करते हो? बोले मेरे 4 पान ठेले और है ना, बीच बीच वहाँ भी चक्कर मारता हूँ, लड़कों को देखने जाता हूँ कि बराबर काम कर रहे कि नहीं कर रहे। मैंने मेरे दिमाग में लगाया कि 4 पान ठेले और एक ये, टोटल 5 लाख रुपया, 15-15 हज़ार का लड़का रखा हुआ है, 75,000 माइनस कर लो, फिर भी 4,25,000 वो इंसान काम कमा रहा है जो हाई स्कूल भी पास नहीं है, और मैं डबल PhD होकर के भी 1/4 उसके कंपैरिजन में सैलरी ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो था उसको एज इट इज रट लिया, एग्जामिनेशन में टॉप कर लिया, और मुझे लोगों ने होशियार समझ लिया, और उसने हाई स्कूल को तरफ ध्यान नहीं दिया, अपना दिमाग लगाया, क्रिएटिव थिंकिंग किया उसने कि कैसे पैसे को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। नाइस। तो सर इसी से रिलेटेड एक बात कि सक्सेस सर आपके ओपिनियन में क्या है सर? सक्सेस इज you think something and if you achieve it. Okay. Whatever you think, suppose I think something, it may be a very small thing, right? जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ हो, छोटी सी छोटी चीज़ हो, और मुझे लगे यार आज मुझे लड्डू खाने का मन कर रहा है, और बाई चांस शाम को मैं लड्डू खा लूँ, दिस इज सक्सेस। ओके सर, स्पीकिंग अबाउट मनी, पैसों के बारे में बात करते हुए, हाँ सर हम ये एक कॉमन हमारा एक विजन है, या फिर हम कॉमनली अज्यूम कर लेते हैं कि जो ज़्यादा पैसे वाला है, जो ज़्यादा रिच है, ही इज़ मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको कई एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे पैसे वाले हैं वो सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल व्यक्ति वही है कि जो सोचता है वो कर पाता है ज़िंदगी में, और सक्सेसफुल व्यक्ति वही है जब आप उससे मिलो तो आप वो मैग्नेट की तरह आपको अपने पास खींच ले, इतना चेयरफुलनेस हो उसमें, इतना पॉजिटिविटी हो, इतना अपनापन हो, इतनी सहानुभूति हो, इतना प्रेम हो, इतना स्नेह हो, इतनी मोहब्बत हो, इतनी दोस्ती हो उसके पास। अगर ये चीज़ें हैं, इसमें पैसा तो बोला ही नहीं मैंने कहा मोहब्बत हो, दोस्ती हो, प्रेम हो, स्नेह हो, अपनापन हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, चेयरफुलनेस हो, ये तो किसी के पास भी हो सकता है। उससे पैसे का लेना देना नहीं है। पैसा ज़रूरी है, पैसा जीने के लिए ज़रूरी है, खुश होने के लिए ज़रूरी नहीं है सर। बट क्या आप ये नहीं सोचते कि जो मटेरियल वर्ल्ड में अभी हम रह रहे हैं, वहाँ पर पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे 90% ऑफ आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं
वेदर इट मे बी आपको कुछ खरीदना है। आजकल तो प्यार भी पैसों के बलबूते नहीं साहब, वो प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो एक क्या बोलते हैं उसको, इट इज़ अ सेटिस्फेक्शन ऑफ योर डिज़ायर, बट प्यार नहीं है जो पैसों से मिलता है। और दूसरी बात 90% नहीं, जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, फंडामेंटल नीड्स जो हैं, वो 50% पैसा हॉल कर सकता है। उसके बाद वो नीड्स नहीं होती। उसके बाद आप ऐसे जोन में पहुंच जाते हो जहाँ पैसा तो है आपको, लेकिन वो चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं जब तक आपके पर्सनैलिटी के अंदर में वैसी चीज़ नहीं है। तो आप सपोज मैं मान लूँ कि आप मिलियनर हो और बहुत सारे लोग आपको यस बॉस बोल रहे हैं। आप अगर इस बात को मिसइंटरप्रेट करते हो कि ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो नहीं है आपके फ्रेंड्स। वो आपको यस बॉस इसलिए कर रहे हैं कि आप पैसे वाले हो, आप उनको जॉब दे रखा है, आप उसको मदद कर सकते हो, लेकिन वो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं। ये आपको मतलब पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता। जब पैसा तो उनको लगता है ये सारे लोग मेरे वेल विशर्स हैं, दे आर नॉट। बराबर है। और बहुत बार हमने गलती क्या की है, और मैंने एक ओटेगा नाम का फिलोसोफर भी यही बोलता है कि आज के दुनिया में हमने क्या किया है कि जो मीडियोकर लोग हैं, अदरवाइज मीडियोकर हैं बाकायदा, लेकिन पैसे वाले हैं, हमने उनके ओपिनियंस को सोशल मीडिया पर डाल दिया और वो जो बोलते हैं उसको बिल्कुल रोल मॉडल मान लिया। लेकिन वो मीडियोकर लोग हैं, उनकी थिंकिंग मीडियोकर है, उनकी पढ़ाई मीडियोकर है, राइट, उनकी सोशल अंडरस्टैंडिंग मीडियोकर है। तो सिर्फ उनके पास पैसा है, कैसे पैसा कमाने का तरीका है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी बात पर अपना ओपिनियन दे दें और बिल्कुल वो राइट हो गया। नॉट एट ऑल। मुझे बताइए, आपको कारपेंटर घर पर बुलाना है, बराबर है, तो जिसने कारपेंट्री 20 साल से जो प्रैक्टिस कर रहा है उसी को बुलाएंगे ना आप उसी को नहीं बुलाएंगे। कोई बोले कि देखो साहब मैं मिलियनर हूं, मैं भी कारपेंट्री जानता हूं, बोलेंगे यार हमको नहीं चाहिए तेरा। बराबर है। सिंपल कारपेंट्री के लिए हम एक्सपीरियंस्ड पर्सन को बुलाते हैं, जिसको आता हो। डेंटिस्ट उसी के पास जाते हैं जो 10 साल से प्रैक्टिस करता हो। ऐसा नहीं देखते ये डेंटिस्ट अमीर है क्या, उसके पास जाएंगे। ये कारपेंटर अमीर है क्या, उसको अपन बुलाते हैं क्या? नहीं। तो वाई वी कमिट दिस फुलिशनेस? जब ओपिनियन की बात होती है, रोल मॉडल की बात होती है, जब समाज में रेस्पेक्ट देने की बात होती है, तो हम ऐसे लोगों को क्यों रेस्पेक्ट देते हैं जिनके पास सिर्फ पैसा है और अकल नहीं है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिस पर हमको विचार करना पड़ेगा। जिस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उसी को वहां रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ना कि आता कुछ नहीं है लेकिन सारे दुनिया के मामलों पर ओपिनियन देते रहते हैं वो लोग, बिकॉज मीडिया उनका, सोशल मीडिया उनका, फॉलोअर्स उनके। तो इसका मतलब नहीं है कि उनका ओपिनियन बिल्कुल राइट है, नॉट एट ऑल। तो वी आर सफरिंग द टेरनी ऑफ मीडियोक्रेसी। सर एक चीज़ कि अभी जो हमारे मेजॉरिटी लिसनर्स हैं, दे आर फ्रॉम द एज ऑफ 19 to 23, एंड दे हैव दिस क्वेश्चन कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सी, आप 50% अपने कमाई धमाई को, कमाने को इम्पोर्टेंस दीजिए, 50% कंसंट्रेट करिए उस पर, और 50% लोगों के दिलों में जगह बनाइए। आप रिलेशंस बनाइए। रिलेशंस एक ऐसी चीज़ है जो हैप्पीनेस का एक अत्यंत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। यानी आप लोगों से अच्छा बर्ताव करें। आप 3-4 बातें हैं आपको जीवन में हैप्पी बना सकती हैं। एक, मिनिमम मनी, यानी सफिशिएंट मनी। अब सफिशिएंस का मतलब करोड़ों मत मानिए, आप जस्ट सोचिए कि आपका महीने भर का खर्चा कितने में चल सकता है, उससे थोड़ा ज़्यादा। सफिशिएंट मनी। गुड रिलेशनशिप्स, आपके 2-4 अच्छे दोस्त होने चाहिए। जो फैमिली मेम्बर्स है वो आपको अच्छा माने, इस प्रकार का व्यवहार आपका अगर है रिलेशनशिप। तीसरा, सम इंपॉर्टेंट पैशन। पैशन यानी कोई भी हो सकती है, गार्डनिंग हो सकता है, पोइट्री राइटिंग हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, डांस हो सकता है, सोशल वर्क हो सकता है। यू शुड हैव वन पैशन। चौथी बात, यू शुड ट्राई टू एक्वायर नॉलेज ऑफ अदर फील्ड्स देन यू आर। जैसे अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग को छोड़ करके बाकी चीज़ें पढ़िए। अगर आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो मेडिसिन को छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ना चालू करें, आधा 1 घंटा उसको दें। ये प्रोसेस है, हमेशा करें, सिर्फ आप स्टूडेंट है तब नहीं, हमेशा करें। चौथी ये बात। 5वीं बात, अपने जीवन का 1% टाइम और 1% पैसा दूसरों लोगों पर खर्चा करें। ये 5 चीज़ें अगर आप करेंगे, टेक इट फ्रॉम मी ऑन द स्टैम्प पेपर, दैट यू विल हैव हैप्पी एज वेल एज सक्सेसफुल। सर एक लास्ट रिक्वेस्ट अगर आप परमिट करें तो, एपिसोड खत्म करने से पहले अगर आप कोई एक आपका मन पसंदीदा शेर या कुछ 2 लाइन आप शायरी, गजल, मैं गजल के 2-4 बंद सुना देता हूँ। मेरी गजल है, काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी मीनिंगफुल भी है। जी सर। तो मैं पॉपुलर गजल बहुत कम कहता हूँ, लेकिन मतलब साहित्यिक ज़्यादा कहता हूँ, तो आप सुने।
दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। तमन्ना थी तमन्ना है तमन्ना ये रहेगी ही, तमन्ना थी तमन्ना है तमन्ना ये रहेगी ही, जो जाना उससे भी ज्यादा कोई जिंदगी होगी। और ये देखें कि हवा चलने से दरवाजे नहीं खुलते, समझ लेना, हवा चलने से दरवाजे नहीं खुलते, समझ लेना, किवाड़ों की कोई अपनी ही मजबूरी रही होगी। बुझा देता है सागर प्यास, ये सच है मगर फिर भी, बुझा देता है सागर प्यास, ये सच है मगर फिर भी, जुदा पहचान खोते ही नदी हर रो पड़ी होगी। और न जाने कैसे सारे हल मुझे मिलते ही जाते हैं, न जाने कैसे सारे हल मुझे मिलते ही जाते हैं, हिसाबों की किताबों में वो गुल रख कर गई होगी। तुम्हें जल्दी है घर जाने की, लेकिन क्या करोगे तुम, तुम्हें जल्दी है घर जाने की, लेकिन क्या करोगे तुम, तुम्हें चढ़ना है जिस बस में वही देखो भरी होगी। दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। शुक्रिया। क्या बात है।